So dear participants, we were talking about hand to face gestures, and in that we would see more like mouth guard and nose touching, eye rub, ear rub, neck scratch, or collar pull, or fingers in the mouth. Mouth guard, for example, when the person is speaking and having this gesture, mouth guard, it means he is telling a lie. Bolte bolte aisa kar diya, he is telling a lie, right? And when he covers his mouth while you are speaking, it indicates that he feels that you are lying. अगर आप बोलते हो और सामने वाले ने ऐसा कर दिया, फिर उसका मीनिंग ये भी होता है कि आपको आप झूठ बोल रहे हो, उनको पता चल गया है. So one has to be very sure about it. Okay, mouth guard gesture, nose touching. It's a sophisticated version of mouth guard gesture. इसका ही sophisticated version ये भी हो सकता है. तो कभी-कभी झूठ बोलते बोलते हम ये भी कर देते हैं. Some women perform this gesture with small discreet strokes to avoid smudging their makeup. Makeup के लिए भी ये करते हैं कभी-कभी. But sometimes when a negative thought enters in the mind, the subconscious instruction are given to the hand to cover the mouth. But at the last moment, there is an attempt to appear less obvious. The hand pulls away from the face and quick nose touch gesture. ऐसे हो जाता है ऐसे. Okay. तो ये gesture अगर हो गया तो ये भी झूठ बोल रहे हैं ऐसा प्रूव होता है. Eye rubbing, brain's attempt to block out the deceit, doubt or lie that is, it sees, or to avoid having to look at the face of the person whom he's telling a lie. अगर आप झूठ बोल रहे हो और सामने वाले का मुंह नहीं देखना चाहते तो भी हम ऐसा कर देते हैं. या कभी कभी अगर हम डिसीट या डाउट होता है, ओके, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, ओके, तो भी ऐसा कर देते हैं. ओके, एंड यू कैन सी दिस, राइट? द पीपल यूज दिस signals for so many non-verbal things. Particularly Russian president is having open palm gesture. At the same time, German chancellor is having this type of gesture. Eye rubbing, so might be meaning of this particular photograph maybe that she is not liking what he is telling. Okay, ear rubbing, hear no evil. अगर हम झूठ सुनना नहीं चाहते हैं तो ऐसा कर देते हैं unknowingly. This is a sophisticated adult version of the hands over both ears gesture used by young child who wants to block the parents instruction. अगर हम कुछ सुनना नहीं चाहते तो ऐसे करते हैं बच्चे. उसका sophisticated version ये होता है बड़े. Neck scratch, signal of doubt. ऐसा अगर करते हैं तो हम समझ ही जाते हैं कि the person is having some doubt. I'm not sure, but yes, I may agree. This is the non-verbal sentence of this. Okay, and it is very noticeable when the verbal language contradicts it. For example, when the person says something like that, I can understand how you feel. मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर non-verbally वो बोल रहा है कि मैं नहीं समझ रहा आप क्या कहना चाहते हैं. तो there is sometimes contradiction. Okay, now fingers in the mouth when the person is under pressure. Sometimes this body language is observed like this or like this. Collar pull gesture when they tell a lie and suspect that they've been caught out. अगर झूठ बोलते हैं, पकड़े गए तो ऐसा करके नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कर देते हैं, right? Okay, and then next after hand to face gesture, now cheek and chin gesture. So this is a boredom gesture. Teacher should know when a student is having such a gesture. Teacher should understand that students are getting bored. Evaluation, interested evaluation, or like this, so negative evaluation or negative interpretation. Okay, in cheek and chin gesture there is a chin stroking like this. So the person is on the verge of taking a decision. Chin stroking like this. And female version of chin stroking may be smaller than the male version. Okay, evaluation and decision cluster, hand to face gesture का combination है ये, चिक और चिन के साथ. Evaluation आप दूसरे 67 में देख सकते हो. Evaluation and decision also and boredom also, तीनों चीज साथ में दिखाई दे रही है. Okay, then head rubbing and head slapping gesture. For example, pain in the neck gesture like this, and then this gesture, oh no, not again.
एंड हेड स्लैपिंग, नॉट अगेन दिस जेस्चर, ओ नो, ऐसा हम कर देते हैं, राइट. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ जेस्चर इज अबाउट आर्म बैरियर, फोल्डेड आर्म. ओके, स्टैंडर्ड आर्म क्रॉस होता है, उसमें रीइंफोर्स्ड आर्म क्रॉस भी होता है और आर्म ग्रिपिंग भी होता है. फॉर एग्जांपल तीनों डायग्राम आप देख सकते हो. स्टैंडर्ड आर्म क्रॉस फिगर 70, 71 में आप दिखाई दे रहे हो दोनों, both the fists are clenched, so it's a hostile attitude. एंड फर्म स्टैंड टेकन, आप जो भी कहना चाहे, मैं अपने ओपिनियन से डिफर नहीं होऊंगा. तो 72 में आपको ये जेस्चर दिखाई दे रहा है. ओके, सी यूनिवर्सल जेस्चर स्टैंडर्ड आर्म क्रॉस, जो हमने स्वामी विवेकानंद का आर्म क्रॉस देखा था थोड़ी देर पहले. An arm gripping gesture, it's common to people who are sitting in doctors and dentist waiting room, or first time air travelers who are waiting for the plane to lift it off. It shows negative, restrained attitude, arm gripping. Okay. See this. Then there is one superior thumbs up gesture, having arm cross with a thumbs up position. Partial arm barrier is sometimes observed when a female who is having, a group of strangers against her. Okay. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने अपने ब्रेस्ट को ऐसे आर्म क्रॉस के पीछे ढक रही है. सो दिस इज अ lack of confidence also sometimes, and a gesture commonly used by people who are standing before a crowd to receive award. तो ऐसा gesture भी देखने को मिलता है. और स्पीच देनी है उससे पहले भी हम ये gesture, फोटोग्राफी के वक्त भी कई बार ये gesture, and then this arm cross, but both of them are having negative implications. See this, can you explain what's going on? She wants to explain something with honesty, but he is, by having arm cross, he is not ready to accept that thing. वो लड़की की बात सुनना नहीं चाहता, या समझना नहीं चाहता, या उसको स्वीकार करना नहीं चाहता. ऐसा हमें इस फोटोग्राफ से समझ में आ रहा है. ओके, नाउ पार्शियल आर्म क्रॉस बैरियर भी होते हैं. फॉर एग्जांपल नर्वसनेस, तो हम अपने स्लीव्स को पकड़ते हैं कई बार. ओके, समटाइम्स हैंडबैग्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ बैरियर. जैसे हम अपनी चेस्ट को हमारे हाथों के पीछे छुपा दे रहे हैं, कभी कभी बैग को या फाइल को भी हम यूज करते हैं, फ्लावर्स को भी यूज करते हैं, उससे भी बैरियर बना लेते हैं. ओके, बहुत बार हमने देखा होगा कि हम जब स्पीच देने जाते हैं तो पोडियम के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा फील होता है. पर जो हमेशा पोडियम के पीछे से बोलते हैं, उसको स्टेज के बिल्कुल फ्रंट में से बोलना पड़ता है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि पोडियम के पीछे उसकी मोस्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज ढक जाती है, छुप जाती है, वो स्टेज के सामने आने में वो डिस्प्ले हो जाती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेग बैरियर. जैसे आर्म बैरियर देखा, लेग बैरियर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये पूरा साइंस ही है. स्टैंडर्ड लेग क्रॉस पोजीशन, अमेरिकन फिगर 4 लेग क्रॉस पोजीशन, लेग क्लैम्प, ओके, एंड स्टैंडिंग लेग क्रॉस भी होता है, ओपनिंग अप प्रोसीजर भी होती है. ये सब चीज हम उसमें देखेंगे. फुट लॉक भी होता है, एंकल लॉक भी होता है, जैसे स्टैंडर्ड लेग क्रॉस. एंड अ वुमन इज शोइंग डिस्प्लेजर, क्योंकि उसने आर्म क्रॉस और लेग क्रॉस दोनों करके वो इंटीमेट नहीं होना चाहती सामने वाले के साथ, राइट, खुल नहीं रही, ऐसा हम देख सकते हैं. अमेरिकन पोजीशन, वो फिगर 4 हम देख सकते हो, या आर्म लॉक इन लेग इन प्लेस, आर्म लॉक द लेग इन प्लेस, हाथों और पैरों का लॉक भी कभी कभी होता है. एंड डिफेंसिव स्टैंडिंग पोजीशन ऐसे होती है जहां हम अपने बॉडी के दोनों एरिया को हम बैरियर के पीछे छुपा दे रहे, तो that shows that she is not opening up against the audience. Okay, तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. Okay, देखिए, क्लोज्ड बॉडी एंड क्लोज्ड एटीट्यूड, एंड देन ओपन बॉडी एंड ओपन एटीट्यूड. तो हमें अपना एटीट्यूड कैसे डिस्प्ले करना है वो हमारे ऊपर है. ओके, 86 में आप देख सकते हो, वुमन इज फीलिंग कोल्ड, ठंड लग रही है, या शी मे बी विशिंग टू गो टू बाथरूम. कभी कभी ऐसा जेस्चर भी हो जाता है, राइट, तो मिस इंटरप्रेट भी नहीं करना चाहिए. मेल वर्जन ऑफ एंकल लॉक, लेग बैरियर ने सिर्फ एंकल्स को, पैरों के नीचे के पार्ट एंकल्स को ही सिर्फ लॉक किया है. और फीमेल वर्जन ऑफ एंकल लॉक ऐसे भी होता है. ओके, एंड स्टैंडिंग फुट लॉक पोजीशन एंड सीटेड फुट लॉक पोजीशन ऐसे भी कभी कभी होती है. ओके, दूसरे जेस्चर्स भी है, जैसे स्ट्रेडलिंग अ चेयर,
एंड पिकिंग इमेजिनरी लिंट, जैसे आप देखिए स्ट्रेडलर चेयर के ऊपर ऐसा बैठने से हम केयरलेसनेस डिस्प्ले कर सकते हैं। लिंट पीकर जब जाने की जल्दी हो रही और सामने वाला बहुत बातें करता है तब हम चेयर में आगे आने लगते हैं। तो उससे समझ देना चाहिए सामने वाले को कि ही वांट्स टू स्टॉप द डिस्कशन, मीटिंग खत्म करके उसको जल्दी जाना है, तो हम चेयर में से आगे बढ़ने लगते हैं, चेयर में आगे आने लगते हैं। हेड जेस्चर जैसे न्यूट्रल इंटरेस्टेड जेस्चर लाइक दिस एंड disapproval like this. And then see this, I am as maybe somebody will be as smart as I am. I'm smart. ओके पर अगर दो लोग ऐसे सामने आमने सामने बैठे हैं, दोनों सिमिलर पोजीशन में, तो दोनों एक दूसरे से यही बात करते कि आप स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूँ, आपसे कम नहीं हूँ. ओके एंड रेडी फॉर एक्शन, इट्स अ जेस्चर. Hands on the hip, they are used to make clothing seem more appealing. Okay, तो वो फोटोग्राफी में या रैंप वॉक करते वक्त या फैशन शो में ऐसे जेस्चर्स हमें कई बार देखने को मिलते हैं. एंड सी दिस रेडीनेस टू एंड द एनकाउंटर, बात खत्म करने की रेडीनेस. आप देखिए 101 में और 102 में अब बात खत्म करनी ही, अब मीटिंग फिनिश ही करनी है, तो जाना ही है उसको, तो हमें बोलने से रुक जाना चाहिए. ओके साइजिंग ईच अदर अप, दोनों एक दूसरे को नापते हैं इसमें, और दोनों एक दूसरे के साथ अभी झगड़े के मूड में, ऐसा भी लग रहा है 106 में. टेरिटरी एंड ओनरशिप, तो टेकिंग अ क्लेम, तो यहाँ ये प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का पिक्चर है, और वो प्रिंस चार्ल्स क्लेम कर रहे हैं कि शी इज माई वाइफ एंड आई हैव ओनरशिप ऑन हर. एंड सी समटाइम्स फोटोग्राफी में ऐसे भी देखने को मिलता है कि हम प्राइड से हम अपनी कार के ऊपर पैर रख के फोटो खिंचवाते हैं, या ऐसी कई जगह पे हम ऐसे इमेजिनरी लिंट लेते हैं. ओके लेक ऑफ कंसर्न, सी दिस, किसी एडवर्टाइज में धोनी ने ऐसा पोज दिया था, या फिर शोले का ये फेमस सॉन्ग आप देख रहे हो, तो लेक ऑफ कंसर्न और क्लेमिंग द ओनरशिप. ऑफिस में भी अब अगर हम ऐसे बैठते हैं, अगर राइट जैसे अमिताभ बच्चन बैठे, तो हम ओनरशिप या बॉस ऐसा जनरली बैठ सकते हैं, एम्प्लॉइज नहीं बैठ सकते. एंड सी दिस क्लेमिंग द ओनरशिप, वेदर गांधी जी एंड जीना जी या अमिताभ जी और शाहरुख जी हो, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ में आएगा. पॉइंटर्स, 3 लोग बैठे सोफा पे, पर 2 लोगों का एंगल एक दूसरे के साथ 45 डिग्रीज का है, तो वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, whereas the third person is out of discussion, he is excluded from the discussion. तो एंगल से भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे कोई सर जो है, बॉस जो है, वो अंदर एंटर हो रहे, बाजू में कोई खड़ा है क्लर्क, उससे कुछ बात करता है, तो बॉस का बॉडी पूरा उसके तरफ मूव नहीं होगा, सिर्फ हेड ही मूव होगा. तो बॉडी शोज वेयर द माइंड वांट्स टू गो, तो उसको बॉस को तो अंदर ही आना है, पर उसने बीच में रोक दिया, तो ऐसे सिर्फ पूरा बॉडी नहीं घुमाएगा, सिर्फ हेड ही घुमाएगा. तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए. जैसे कि ये आप देखिए, एंगल सेज समथिंग. ओके ये दोनों डायग्राम में आप एंगल्स से कुछ ना कुछ समझ सकते हो. Okay, in first left side diagram, 3 of them are in appropriate triangular position, whereas in the second right side diagram you can see that the male and female, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, and the third person is not accepted by the two, क्योंकि एंगल तीनों का इक्वल नहीं है, ट्रायंगुलर नहीं है, पर वो दोनों का एक दूसरे के सामने 90 डिग्री का एंगल है. तीसरे पर्सन को डिस्कशन से एक्सक्लूड कर दिया है. सो हम कभी कभी क्राउड को देखते हैं ऐसे लॉबी में खड़े होके, नीचे ग्राउंड में 10-15 लोग खड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके डिस्टेंस को देख के हम कुछ ना कुछ उससे कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ समझ सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट. ओके यहाँ 3 लोग अगर मीटिंग में ऐसे बैठे, तो द पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड wants to show dominance और पूरी डिस्कशन का कंट्रोल लेना चाहता है. क्लिंच्ड फिंगर्स आप देख रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी या कॉन्फिडेंस बयां करती है. सेंटर में जो पर्सन है, ही फील सुपीरियर टू द अदर टू, वो भी सुपीरियरिटी डिस्प्ले कर रहा है. whereas the person on the right side, he is in a low status chair, उसकी चेयर के जो सिटिंग पोजीशन है वो लो स्टेटस चेयर है.
एक्सेसरीज भी कुछ नहीं है, फिक्स्ड लेग्स है, ओके, टाइटली डिफेंसिव है, हॉस्टाइल भी है। तो ये पूरी स्टोरी हमें इससे देखने को मिलती है, राइट। सो देर आर सो मेनी ट्रिक्स। स्टैंड अप स्ट्रेट एंड रिलैक्स। अगर वॉक करे तो भी अच्छे तरीके से वॉक करे, सिटिंग में भी अच्छे तरीके से बैठे, राइट। एंड मिरर or match the other person's posture, sometimes very important. Stand still, smile, offer a firm handshake, keep eye contact, smile when greeting somebody, and don't lean on the wall. Right? All these things will make your body language better. There are 10 ways to show confidence with body language. Use eye contact. Don't cross your arms when socializing. ऐसे आर्म क्रॉस नहीं करे, स्माइल रखे, ग्रूमिंग करे, अच्छे कपड़े पहने, फर्म हैंडशेक, बड़े स्टेप्स ले चलने के वक्त, स्टैंड अप स्ट्रेट, कीप योर आईज फॉरवर्ड, एंड डोंट फॉरगेट नाइदर यूज्ड योर पॉकेट्स, पॉकेट्स के अंदर हाथ मत रखे। सो आई कांटेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेग्स के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि स्पीच देते वक्त हमारे लेग की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ ना कुछ कह जाती है, तो सामने वाला भी पकड़ सकता है हमें। तो लेग, आर्म्स, तो आर्म क्रॉस बहुत मत न रखिए, ओके। पाम ऊपर रखिए, ओपन पाम जेस्चर को ज्यादा यूज कीजिए। पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम में ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसे खड़े हैं तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे आप अटेंशन लेते हैं ऐसे देना भी चाहिए, ओके। इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन व्हाट समवन हैज टू से, योर बॉडी लैंग्वेज विल प्रोजेक्ट दैट यू आर, ओके। बात करते वक्त एंगल, जिस एंगल से हम सामने वाले से बात करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। स्माइल इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो जो सबसे पहले हमने जोन्स की बात की थी, इंटीमेट जोन, उसके बाद पर्सनल जोन, तो जिस जोन में जिसको आना चाहिए उसको उसी में आना चाहिए, ओके। Let other people know that you have your own personal space, and be careful not to invade theirs also, right? Standing either too close or too far from a person is not a good thing. बहुत नजदीकी से बहुत दूरी से दोनों नहीं करना चाहिए, बातें करनी चाहिए प्रॉपर डिस्टेंस से। And before you make a decision, observe the average distance between others in the room and pick a distance accordingly. Okay. Proactive mirroring. When two people are taking and getting along with each other, they often begin to unconsciously mirror each other's body language. So you can use this at your advantage. अगर मीटिंग में या किसी के साथ बातें करनी है तो बॉडी लैंग्वेज को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप मिरर कर सकते हो, राइट। तो उससे थोड़ा रेपो बढ़ेगा। If the other person leans forward slightly, you also lean forward. थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके, okay. So remember to be patient and learn these tips. Try to understand and remain, becoming sensitive to the clues of body language can help us to communicate more effectively with our students. We can understand what they are telling. We can sense when they are silent, or when whether they are digesting our information or not, whether they are confused or not. We can share feelings too strongly, too difficultly to be expressed in words. अगर जो बातों से नहीं कहा जा सकता वो हम जेस्चर से कह सकते हो, या कुछ सीक्रेट मैसेज भी दे सकते हो, किसी को डांट भी सकते हो सिर्फ आंखों से ही, और जनरली वो टीचर्स करते ही है, okay. So we don't have bodies, we are our bodies, remember, okay. So I would like to acknowledge the book of Ellen Pease, and thank you very much, and would be very happy if you share your feedback or ask any questions. My email might be there with you, drmehulpdave@gmail.com. There are so many things in body language, and just by looking to the photograph we can see the entire story behind the photograph. You can see and enjoy and think yourself various body language gestures. So at the end of the lecture, again, I would like to thank Gujarat University, HRDC and IITE for this opportunity. All the participants, thank you to you also for becoming patient and listening this lecture. Thank you very much. Thank you all.